Hello friends, today's lecture we are going to study a poetic grammar, that's figures of speech. Children, whenever we study a particular poem, one of the things that generally troubles us is related to the figures of speech. So I'm going to divide this lecture into two different parts. Today we will discuss few of the figures of speech, and in the coming lecture we'll be discussing with some other figures of speech. Children, first of all, let's try to understand what exactly is the meaning of figures of speech. Figures of speech basically are poetic languages. Whenever we speak in a normal language, we don't use figures of speech, but whenever we are giving a speech, addressing the public, or saying a poem, then we make use of figurative or metaphorical languages. चिल्ड्रन, नॉर्मली पोएट्स जब बात करते हैं या फिर हम लाइक पीपल लाइक अस, व्हेन वी स्पीक वी माइट हैव अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज, बट व्हेन पोएट्स स्पीक they have got a very decorative language. Now that decorative language is basically referred to as the figures of speech. If someone is very sad, what does a person say? That I am very sad. A poet would go beyond that normal language just to decorate the sentence. He might say that like my life is so much filled with sorrow that if I cry, all the rivers of this world would fill with my tears. Now that's again, as I said, like a decorative language. So children, one by one we are going to discuss the different figures of speech for today's lecture. So beginning with the most easiest one that we have, this figure of speech, children, is referred to as alliteration. As you can see, the explanation for it is given on your screen. There is a repetition of sound within a phrase or a sentence. बच्चों, एक ही सेंटेंस के अंदर जब साउंड्स रिपीट करते हैं, साउंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. अच्छा, सपोज इफ आई से माय ब्रदर बेक्स अ ब्रेड, so you can see that the sound of B or sound of BR is repeating, and that actually gives a very pleasing sound effect. What is the example that is mentioned on your screen, children? She sells seashells on the seashore. जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको S का साउंड स्ट्रेस होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, every time that S is sounding, and that is the sounding effect. Or you have gone through some tongue twisters. Got a tongue twister which says that Betty bought a better butter, but the better butter was bitter, so she went to the market and bought better butter to make bitter butter better. Okay, now here, children, did you notice one thing? The sound of B has repeated so many times. So whenever in one single line, children, the sound of a particular letter or a group of letter repeats, then we name that figure of speech as alliteration. Okay, इसका एक्सप्लेनेशन लिखने का रहेगा तो आप कैसे लिखोगे? द साउंड ऑफ लेटर एस इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंग पोएटिक इफेक्ट. द सेकेंड वन, चिल्ड्रन, दैट्स टर्म्ड एज एपोस्ट्रोफी. पोएट्स जब भी बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर को या फिर वो जो पूरा इमेजरी आता है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए समटाइम्स द पोएट्स स्पीक to those things which are not alive as if these things were actually alive. So you can just see the explanation, children, on a screen. Speaking to an object or an item that is not alive as if it is in fact alive. तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग डायरेक्टली एड्रेस करते हैं जैसे कि वो चीज़ हमारी बात सुन रही है. चिल्ड्रन, whenever we stand in front of the statue of God, क्या बात करते हैं हम लोग? Oh God, please help me. Now we know that God is physically not present in front of us, लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्टली उनसे बात करते हैं. अच्छा, ज़्यादातर सिचुएशंस में एपोस्ट्रोफीज ओ ए लेटर से स्टार्ट होते हैं. ओ हेवन, प्लीज सेंड योर ब्लेसिंग्स. नाउ आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू हेवन एज इफ हेवन इज लिसनिंग टू मी. या फिर ओ ट्रीज, गिव मी सम एयर. नाउ हियर आई एम एड्रेसिंग टू अ ट्री एज इफ इट इज अ लिविंग थिंग. यहाँ पे जो एग्जाम्पल कोट किया गया बच्चों लोग, कम ऑन ट्राउजर्स यू हैव टू फिट मी, कि हम लोग ट्राउजर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि आपको मुझे फिट करना है. सो दिस इज एपोस्ट्रोफ.
सो जब भी साउंड रिपीट होता है तो एलिट्रेशन। जब हम लोग किसी नॉन लिविंग थिंग से डायरेक्टली बात करते हैं, जैसे कि वो हमारी बात सुन रहा है, देन चिल्ड्रन वी रिफर टू इट एज अ एपोस्ट्रोफ। देन द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, it's known as antithesis. Antithesis basically are contrasting or contradicting ideas are put together in a statement and balanced. So as you can see on your screen children, contrasting or opposite ideas in a statement that is balanced. तो एक ही सेंटेंस में या तो ऑपोजिट आइडियाज या तो फिर ऑपोजिट वर्ड्स को जब यूज किया जाता है तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बुलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन वी गॉट मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर टू ऑपोजिट वर्ड्स, प्रोपोज एंड डिस्पोज। तो एग्जाम में चलो जब भी आप इसका एक्सप्लेनेशन मेंशन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन दैट द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस, और एक्सप्लेनेशन में लिखना है ऑपोजिट आइडियाज आर एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड्स प्रोपोजेस एंड डिस्पोजेस। Suppose, like for example, children, there could be n number of examples. When we say, I was waiting for you night and day, तो वहां पे बच्चे लोग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज नहीं है लेकिन ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। अभी सक्सेस और फेलियर चिल्ड्रन, दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड हियर। सो किसी भी सेंटेंस में बच्चे लोग जब दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे आपको, अच्छा, we can understand that the figure of speech can be named as antithesis. Then here we have got the next one, euphemism. बच्चों लोग नॉर्मल लाइफ में बात करते हो हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिससे सामने वाले को कभी कभी मतलब बुरा लग सकता है, दैट मीन्स दे आर डीम्ड ऑफेंसिव। तो पोएटिक लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, आपको वही मीनिंग बताना है सामने वाले को, बस थोड़ा सा उसको मीठा मीठा करके आपको कुछ बुरी बात सुनानी है। So replacement of a phrase which might be deemed as offensive by one which implies the same thing but does not carry offense with it. तो आप जब भी किसी से बात करोगे, अभी आपको जैसे किसी को बुरी खबर देनी है कि किसी का डेथ हुआ है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी से कि लाइक अ पर्सन हैज डाइड। लेकिन फिर आपको पता है कि अ पर्सन हैज डाइड जनरली लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइक ही हैज किक द बकेट। Yes, kick the bucket means he has died. या फिर we say he has passed away. अच्छा children, here we generally mean that कि euphemism tries to just smoothen those offensive things which might be very bad to listen to. तो suppose for example here we have got this example which says that आपको कुछ भी बात बतानी है, जैसे कि किसी का डेथ हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्या, he has kicked the bucket। तो सामने वाला समझ जाता है कि लाइक someone has died. Children, the next figure of speech in line is personification. ज़्यादातर पोएट्स जो अपने नेचर से डील करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नॉन लिविंग होती है, जिनमें जान नहीं होती। कभी कभी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी थोड़ा लाइफ डाल देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज डाल देते हैं, एंड देन दैट इज टर्म्ड एज पर्सोनिफिकेशन। An object which is not alive is given human qualities. एक नॉन लिविंग थिंग को चलो जब हम लोग ह्यूमन बींग्स का कोई क्वालिटी दे देते हैं तो इट इज रिफर टू एज अ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफाई, जैसे माई कार इज अ रियल ब्यूटी। नाउ कार यू नो चिल्ड्रन इट्स अ नॉन लिविंग थिंग और ब्यूटी एक ह्यूमन क्वालिटी होता है, तो हमने ब्यूटी ए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किसको एट्रीब्यूट किया यहाँ पे, कार को। So we can say that the quality or the human quality of beauty is given to car, which is actually a non-living thing. Okay, we say that for example, children, the tree was staring at me. अच्छा, tree is given the human quality of staring at someone. एक object है बच्चों लोग जो suppose for example might be it's alive but it has actually given some human quality here. That's personification. Then children, we come through simile. सिमिलीज बेसिकली हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करते वक्त बताएंगे कि दोनों चीज़ों में सेम क्वालिटी है, और उसके लिए हम लोग कुछ वर्ड्स यूज करते हैं बच्चों, दैट इज लाइक, एज, सो। हर हेयर वॉज एज गोल्डन एज द सन। तो बच्चों लोग उसके हेयर को और सन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में कॉमन क्वालिटी कौन सा है, गोल्डन। एज कूल एज कुकम्बर, फॉर एग्जाम्पल एज स्लो एज स्नेल, For example, at white as snow, ये सब examples होते हैं simile के लिए। Children, this is something like direct comparison made between two different objects. Then children, we come towards repetition.
रेपिटेशन में क्या होगा, एक ही सेंटेंस में हम लोग किसी वर्ड को या फिर किसी फ्रेज को एक ही लाइन में लेकिन रिपीट करेंगे, विच एक्चुअली गिव्स अ प्लीजिंग साउंड इफेक्ट. Children, here I have written something, the औदुंबर, the नीम and the शेवगा, these are the name of some trees. और हर एक ट्री से पहले उन्होंने चलो the word मेंशन किया यहाँ पे, that gives it a very pleasing sound effect. अच्छा, तो आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको पहले क्या लिखना है, रेपिटेशन. उसके नीचे क्या लिखोगे, the word apostrophe डाल के क्या लिखोगे, the is repeated for pleasing sound effect. अच्छा, सिंपल एग्जांपल, वी से द रिवर, द सी एंड द ओशन, वहां पे भी आप देख सकते हो द वर्ड को रिपीट किया गया है. क्लियर. अच्छा, सिंपल एग्जांपल, माई हाउस, माई पीपल एंड माई प्रॉपर्टी, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड. यहाँ पे कौन से वर्ड को रिपीट किया हमने, माई. सो दैट्स चिल्ड्रन रिफर टू एज रेपिटेशन. इसके बाद चलो बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं. इसको हम लोग फॉर एग्जांपल वी समटाइम्स रिफर टू एज रिफ्रेन करके आता है. अच्छा, तो वहाँ पे या फिर देयर आर सर्टन पार्ट्स कि डिपेंड करता है कि लाइक स्टार्टिंग का फ्रेज रिपीट करता है फिर लास्ट का फ्रेज, अकॉर्डिंगली वी माइट हैव डिफरेंट नेम्स, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए ये रेपिटेशन काफ़ी रहेगा. देन चिल्ड्रन कम टू हाइपरबोल, समटाइम्स वी रिफर टू एज हाइपरबली. हाइपरबोल चिल्ड्रन, इट्स नथिंग बट एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट. एग्जाजरेशन होता क्या है पता है मोस्टली हम लोगों को, किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवर करके बताना, थोड़ा ड्रामेटिक बनाने का है. ठीक है, तो दैट्स बेसिकली रिफर टू एज हाइपर. जैसे कि हम लोग कभी कभी पकाना बोलते हैं उसको. अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि एक पोएट है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको बताना कि मुझे बहुत दुख हुआ है. लेकिन नॉर्मल आदमी बोलता है कि मुझे दुख हुआ है, एक पोएट बोलता है कि मुझे इतना दुख हुआ है कि अगर मैं रोना चालू कर दूँ तो इस दुनिया की सब नदियों को मैं अपने आंसुओं से भर सकता हूँ. नाउ वी नो दैट ही इज फीलिंग सैड बट नॉट सो सैड दैट ही कैन फिल द रिवर्स विद हिज टीयर्स. चिल्ड्रन, दैट्स एग्जैक्टली हैपन. माई बैग वेज अ टन. आपका बैग भारी है, हैवी है, लेकिन आप बोलते हो कि 1 टन वजन रहेगा. अभी आपको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स अ एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट चिल्ड्रन. क्लियर. अच्छा, एंड देन वी कम अक्रॉस द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, दैट्स रिफर टू एज लिटोट्स. इट्स अ अंडरस्टेटमेंट चिल्ड्रन विच अप्लाइज द नेगेटिव टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अफर्मेटिव. सो लाइक हिज सिंगिंग इज नॉट टू बैड. उसका गाना इतना भी बुरा नहीं है. तो एक्चुअली आप बुरा नहीं हो बोल रहे, लेकिन आप बताना चाहते हो कि वो बुरा है करके. तो समटाइम्स इट्स समथिंग कमिंग क्लोजर टू आयरनी. आपको एक स्टेटमेंट बताना है, अच्छा आप उसको नेगेटिवली बात करते हो क्योंकि आप उसको अफर्म करना चाहते हो. सो सिंपल एग्जांपल के लिए जब मैं बोलता हूँ कि अरे यू आर नॉट टू फैट बट आई एम टेलिंग यू दैट यू आर एक्चुअली फैट. सो दैट्स द फिगर ऑफ स्पीच चिल्ड्रन, दैट्स रिफर टू एज लिटोट्स करके बोला जाता है इसको. Clear? And for today's discussion children, the next figure of speech is referred to as a metaphor. थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने बात किया था सिमिली के बारे में. सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. जब मैं बोलता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल समवन लुकिंग डार्क, तो बोले कि यू आर लुकिंग एज डार्क एज अ क्रो. लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कभी कभी हम लोग मजाक करते हुए बोलते हैं कि लाइक हाँ तू कौवे की जितना काला दिखता है करके. लेकिन फिर कभी कभी दोस्त लोग हैं ज़्यादा ही कोई मजाक कर रहा है तो फिर जैसे एज डार्क एज अ क्रो. बट सपोज लाइक अगर हम लोग किसी को डायरेक्टली क्रो करके बताए तो कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है तो हम बोलते हैं अबे चुप ना कौवे. नाउ व्हाट्स दैट चिल्ड्रन, वी आर रिफरिंग टू समवन एज अ क्रो. अच्छा, डोंट बिहेव लाइक अ डोंकी. नाउ लाइक चिल्ड्रन दैट्स सिमिली, बट इफ वी डायरेक्टली कॉल समवन एज अ डोंकी देन इट विल बी नोन एज अ मेटाफर. इट्स इम्प्लाइड सिमिली चिल्ड्रन. हर एक सिमिली को मेटाफर बनाया जाता है, हर एक मेटाफर को सिमिली में कन्वर्ट किया जाता है. अ कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ अ डेजर्ट. तो लाइक आया तो सिमिली हो गया. लेकिन व्हेन वी से चिल्ड्रन दैट अ कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो वो क्या होता है, मेटाफर. सो कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स विच शेयर समथिंग इन कॉमन. बच्चों कोई किसी को जिंदगी में राह दिखाने का काम करता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइक वो लोगों के लिए एक लाइट है. हाँ, लाइक बोलेंगे तो फिर सिमिल. लेकिन आई से चिल्ड्रन यू आर अ लाइट टू द वर्ल्ड. क्या बोला, यू आर अ लाइट टू द वर्ल्ड. चिल्ड्रन दैट वुड एक्चुअली मीन दैट वी आर रिफरिंग टू अ मेटाफर. Clear? So suppose these are the various figures of speech children we have discussed today. We'll be coming back with more figure of speech in the coming lecture. Till then, bye, take care, be safe, see you again.